Nikhat, I want to go to you as in, you're not competed in the Olympics yet. In fact, you only have one multi-game event ka experience. But you also are a fan of, manifestation. Like, आप काफी वो notes बनाते हैं, you talk to yourself. Have you spoken to, other people about what the journey is like? Have you any idea ki you're going to it for the first time? Like, this is the first year where you know that this is what you're preparing for. Have you discussed with anyone? Have you got any advice? Do you know what you're in for? कि क्या होगा अभी यहाँ पे? Literally, I don't have any idea of how the Olympic is because if I get qualified for Paris, it will be my first experience. But I mean, the kind of stories they are sharing about the Olympics, now it's giving me sort of nervousness. but uh, but but I am mentally very strong enough to tackle all the challenges which comes on my way, and but I will only aim only on one goal, that is to win Olympic medal for my country. I don't want to, focus more on negativity rather than I can focus more on positive things, which will make me do well at Olympics. So yes, but I don't know after Paris Olympics I will be continuing boxing or not. But I want to give everything for the Paris because I don't want any regrets after Paris because I am like working really hard to win that medal in Paris. So that is why I'm saying that my ultimate dream is to win Paris Olympic gold medal. So yeah, I want to give everything for that. I want to add to this because you may not have gone to the Olympics, but you're working with coaches and support staff who have made this journey, as in they've made this journey with other athletes. What have they told you about this? Or what you must be preparing with something in mind. What does it take, do you think? Um, my friend Lovelina, who has won bronze medal at Tokyo Olympics. So since then, her life has changed differently. Like since she won that bronze medal, her life has changed. Her performance came down, and she was very upset. I know every day she used to cry. Even in the Commonwealth Games, also when she lost her bout, she was very upset. She was crying, and she was like even thinking to quit boxing. Then I had a conversation with her. I said, see, these things will make you strong. I remember like when I was giving her bhashan, uh, because I was also going through same thing in 2019, mid 2019 and 2020. It was a very learning year for me. It like after 2020, like I didn't only come physically strong, but also mentally strong, uh, because I always believe कि जब इंसान लाइफ में ठोकर खाता है ना, जब वो कमबैक करता है तो बाद में उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती. सो मुझे पता है जब when my time was like I was going through a bad phase in 2020, no one was there, and for God's sake, lockdown was there. I couldn't even go to gym and mind divert करने के लिए gym भी नहीं जा सकती थी और vacation पे भी नहीं जा सकती थी. Everything was because of the lockdown. तो सब कुछ बंद था तो घर पे पड़े पड़े भी like a kind of frustration सा हो रहा था. But because of my nephews and niece, I used to spend my whole day with them. तो दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था. तो that is how I love spending time with the kids. और बहुत मैंने like वहाँ से मैंने visualization, manifestation पे बहुत काम किया मैंने. मेडिटेशन करती थी मैं. देन वहाँ से मैंने ये जो रिचुअल है मैनिफेस्टेशन का वो मैंने स्टार्ट किया. वेन एवर आई गो टू एनी कॉम्पिटिशन आई स्टार्टेड दिस सिंस स्ट्रैंजा. एक्चुअली स्ट्रैंजा में मैं गई थी जिस दिन हम लोग होटल में पहुँचे. मेरे पास वो कलर के नोट्स होते हैं और मैं स्केचेस भी कैरी करती हूँ अपने साथ. तो मैं उसको ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पेंट करती हूँ. देन आई कीप इट बिसाइड माई बेड. सो बिफोर गोइंग टू स्लीप
I watch that, and when I wake up, the first thing when I wake up, I watch that. तो आप जितना आप उस चीज़ पे आप फोकस करते हो, बोलते हैं ना, वो एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है. वॉट यू थिंक यू बिकम. सो आई ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली कि मैं चैम्पियन बन रही हूँ. जब मेरा स्ट्रैंजा का ड्रॉ आया था, आई सॉ कि इतना टफ ड्रॉ था. आई वॉज फेसिंग टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट. तो अब लाइक लास्ट टाइम मैं उसके साथ हारी भी हूँ 5-0 से यूनानिमसली. तो मैंने बस एक ही चीज़ सोचा था कि मैंने कोई होप्स ही नहीं रखा था कि मैं जीतूंगी उसके साथ. बट आई रिमेम्बर जब मैंने सोचा कि निखत हार जीत तो होगी, ठीक है, अपना 100% एटलीस्ट वहाँ पे जाके 100% देते हैं. तो मैं बाउट के लिए रेडी हो गई. मैं ऐसे बैठी हूँ एंड आई डोंट नो मैं किस जोन में थी, मुझे भी नहीं पता था. बट जैसे भट्ट सर मेरे सामने आके खड़े हुए और उन्होंने मेरे आंखों में आंख डाल के मेरे शोल्डर्स पे हाथ रख के बोला, कार्टून रेडी है बेटा, मुक्के नहीं रुकने चाहिए तेरे, ऐसे बोला. और जिस खुंदस से उन्होंने बोला, मेरे अंदर जो शेर सो रहा था ना, वो जग गया, ऐसे कहूँगी मैं. और बस रिंग में जाते ही मैंने फर्स्ट राउंड मैंने अपना बेस्ट दिया. और कॉर्नर में आने के बाद रेस्ट में स्कोर दिखाया जाता है. तो मैंने आते ही सर से पूछा, सर स्कोर क्या है. सर ने बोला 3-2. तो मुझे लगा शायद 3 जजेस ने उसको जिताया, 2 ने मुझे जिताया. फिर मैंने फिर से पूछा, सर 3 किसका है. तो सर ने बोला 3 अपना है. आई वाज लाइक, अरे वाह, मैं फर्स्ट राउंड जीत चुकी हूँ, मैं सेकेंड राउंड भी जीतूंगी तो मैं बाउट जीत सकती हूँ. फिर मैंने सोचा सेकेंड राउंड अपना 100% देना है. सेकेंड राउंड में गई मैं. मैंने मतलब अटैक किया, क्लिंचिंग हो रहा था. फिर रेफरी ने उसको वार्निंग दे दी. मैं अरे यार वार्निंग दे दी, अब तो लाइक ये राउंड मैं जीत सकती हूँ. फिर 10 सेकेंड बाद फिर मुझे वार्निंग मिला. मैंने कहा अरे यार मुझे वार्निंग मिल गया, अब तो और जान लगानी पड़ेगी, कुछ टाइम रह गया. फिर मैं अपना फिर और बेस्ट दिया मैंने. फिर जैसे सेकेंड राउंड खत्म हुआ, कॉर्नर पे आई, मैंने फिर से पूछा सर स्कोर क्या है. सर ने बोला 4-1. मैंने कहा अरे यार, मुझे लगा कि मैं ये राउंड हार गई, अरे यार मैं गया होगा. फिर मैंने फिर से पूछा सर 4 किसका है. सर ने बोला 4 अपना है, 1 उसका है. मैं अरे अब तो जीतूंगी मैं ये बाउट. अब थर्ड राउंड रह गया, अब जान बचा के क्या करूंगी मैं. तो मैंने बोला ठीक है सर, अब तो मैं, अब लास्ट राउंड है, अब तो मैं अपना पूरी जान लगा के आ जाऊंगी. लास्ट राउंड में गई, अब जितनी जान मेरे अंदर बची थी मैंने लगा दी. और जब अनाउंसमेंट के टाइम पे मेरा हाथ उठाया था, आई वॉज लिटरली क्राइंग. मैं रिंग से उतरते रो रही थी. सर ने बोला बेटा आंसू नहीं निकलने चाहिए तेरे, अभी नहीं रोना, अभी नहीं रोना, कल चैंपियन बनेगी ना तब रोना, ये कल के लिए बचा के रखना आंसू. तो देन नेक्स्ट फाइनल डे मैं गोल्ड मेडल जीत ली और आई वॉज वेरी हैप्पी. वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लाइक अलग ही लेवल पे गया था. फिर उसके बाद में आते ही मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दी. फिर एक दिन रेस्ट मिला, फिर एशियन गेम्स की ट्रायल दी. बैक टू बैक लाइक 7 डेज में मैंने 5 बाउट लड़ी और आई गॉट सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड एशियन गेम्स. एंड देन फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी हमने इस्तांबुल में की, जाके वहाँ पे डिफरेंट कंट्री बॉक्सर्स के साथ हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की. एंड दैट हैज़ हेल्प मी टू डू वेल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप. और वहाँ पे मैंने सारे एक्सपीरियंस बॉक्सर्स को हराया और मैंने वहाँ पे अपने कंट्री के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता. आफ्टर लाइक मैरी कॉम के बाद जो दूसरा बॉक्सर है जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, दैट वाज मी. तो आई वाज वेरी हैप्पी टू विन दैट गोल्ड मेडल एंड बिकेम 5th इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड. तो मैंने अपनी जगह बनाई एलीट लेवल में. फिर उसके बाद देन लाइक पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही चली. वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने अपने वॉल पे मैंने वो स्टिकर लगा रखा था, चैंपियन और गोल्ड वाला मेडल का लिखा था मैंने, और वही फॉलो किया मैंने. फिर कॉमनवेल्थ में भी गई, वहाँ पे वही रिचुअल मैंने किया. तो तब से लाइक मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना चीज़ें पॉजिटिव करोगे, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो. तो मैं कोशिश इतना यही करती हूँ कि जितना मैं कंपटीशन से पहले पॉजिटिव रहूँ, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करूँ, तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे
और वो आप हासिल करोगे लाइफ में। Thanks, Nikat.